This conference will now be recorded. Enable cam. And now start the session, guys. And now today again I'm starting a Salesforce. Profile, user and user profile. So the today task is Salesforce task 1. Create and attach or edit Salesforce user and profile. तो सिंपल सा गाइस कि पहला टास्क है create Salesforce user, then create Salesforce profile, and then second task create Salesforce users, and third task is attach and edit profile. So this is a task, ये हमारे task है guys. So now the continue, I'm already provide one more thing, the Salesforce. Provide two types of profile. The one is standard profile, this profiles managed by Salesforce and provide by Salesforce. You cannot delete standard profile provided by Salesforce. Same as is another second point is custom profile. Custom profile. Now I'm just talking about a custom profile. Custom profile created by admin and user. You can delete, edit and modify custom profiles. So guys, there are the two types of profile. One is standard profile, second is custom profile. Standard profiles you can provide by the Salesforce. When you create an account, then the automatically some custom profiles provide by the Salesforce. And you cannot delete the Salesforce profile, but you can edit. आप edit कर सकते हैं, but उनके अंदर उनको कोई delete नहीं कर सकते. But when you work with Salesforce first create user profile. So simple सा गाइस कि अगर आपको किसी भी Salesforce
पोर्टल पे वर्क करना है, तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप पर्टिकुलर किस यूजर से काम करोगे। कि मैं जो यहाँ पे पर्टिकुलर यूजर से काम करना चाहता हूँ, आई एम वर्किंग with user is like Sasank. This is my user Sasank, and this Sasank department is look like sales. Sasank work is a sales and it's a sales TL. So guys, now when you work with Salesforce, first create user profile. तो सबसे पहले आपको यूजर की प्रोफाइल करनी है. When inside the profile, provide Salesforce access permission. एंड जो भी प्रोफाइल बनाएंगे आप उसके अंदर Salesforce एक्सेस परमिशन देंगे, कि दिस इज सेल्स टीएल एंड नाउ इनसाइड द सेल्स टीएल देयर द n नंबर ऑफ यूजर इज अवेलेबल. और भी आपके टीएल है तो आपकी टीम के अंदर के और भी मेंबर्स होंगे. नाउ इज इट यूजर 1 इज अवेलेबल, यूजर 2 इज अवेलेबल, यूजर 3 is available and user 4 is available. Now these are the 4 user is available. Is it a user 1, user 2, user 3 and user 4. These are the 4 user is available. Now it depend which types of profile you can allow the TL and which types of profile you can allow other user. Now if you can use it allowed, so this is look like your standard users, आपके normal users हैं जो कि आपके एक particular profile पे common task देना चाहते हैं, so you can create a normal profile. So create normal user profile, and second a Sasank is available a create TL profile. तो डेफिनेटली कि दोनों प्रोफाइल में क्या डिफरेंस होगा कि कुछ एक्स्ट्रा राइट्स आपके पास सेल्स के अंदर यानी कि शशांक के पास होंगे एंड यूजर 1 2 यूजर 2 यूजर 3 एंड यूजर 4 के पास लिमिटेड एक्सेस होंगे. गॉट इट एवरीवन? इज इट क्लियर गाइस? प्लीज रिप्लाई फास्ट. Yes, sir. Now, so how to create a profile? So how to create a profile is simply, guys, first you can log in with portal. So now I'm just go to the portal. And give the select ID and password. So login with root user or system admin user and create user profiles. When you create a user profile, first select Salesforce standard profile, then create new profile, then create new custom profile. This custom profile is copy of standard existing profile. You cannot change
policies in standard profile, but if you create copy, if you create custom profile, then user admin change access policies. Got it the point? तो गाइस अगर आप कभी भी कोई भी अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हो, लाइक आई एम जस्ट क्रिएट अ टीएल प्रोफाइल, तो मैं अगर एक यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टीएल की प्रोफाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इस पर्टिकुलर टीएल की प्रोफाइल के लिए मुझे क्या करना है, लाइक का मुझे इसको एक्सेस देना है एडमिन। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक एडमिन की ही स्टैंडर्ड प्रोफाइल यूज करूंगा। तो नाउ सिलेक्ट एडमिन स्टैंडर्ड प्रोफाइल, मैं यहाँ पे भी एडमिन की स्टैंडर्ड प्रोफाइल सिलेक्ट करूंगा और देन क्या करूंगा, मैं इसी फाइल से इसी प्रोफाइल के थ्रू ये वाली प्रोफाइल बनाऊंगा। तो क्रिएट प्रोफाइल, तो जब भी आप यहाँ पे प्रोफाइल अपनी क्रिएट करेंगे तो होगा क्या कि जो भी आपके स्टैंडर्ड प्रोफाइल का डेटा है या XYZ जो भी रूल्स है, वो सारे के सारे रूल्स आपके इस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे भी कॉपी हो जाएंगे। और जब आप कॉपी हो जाएंगे तो इट गिव यू द एडिटिंग ऑप्शन, ये आपको एडिटिंग ऑप्शन दे देगा। और अब आप जो भी राइट शशांक के लिए देना चाहते हैं आप उसको एडिट कर सकते हैं एंड देन अटैच दिस प्रोफाइल विद यूजर। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? guys, got it this point? So how to create a profile? So how to create a profile is simply the how to create a profile. Now simply I'm just go to the portal, I'm login with admin user. So if you can see कि अगर आपका ये कौन सा यूजर है, आप किस पर्टिकुलर यूजर से काम कर रहे हो, so guys simply you can click on a profile tab and you can see that my username is ICCP Infotech. So this is my username, is it ICCP Infotech. Now is it simply I'm just come to the user and then click on a user. So you can see guys, they show the all list of the users. यहाँ पे सारे users हैं now ICCP Infotech, and now it's a system administrator, यानी कि that means कि I'm currently I'm login with the system administrator. तो guys remember कि आप जब भी काम कर रहे हैं तो आपका जो system user है वो आपका system administrator है, and this system administrator profile by the Salesforce, and you cannot edit or change this profile. So जो भी आपका root user होगा वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होगा और आप इस प्रोफाइल को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसके थ्रू जो भी यूजर बनाएंगे आप उसकी प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। तो यू कैन सी गाइस कि आपके पास यहाँ पर प्रोफाइल चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप प्रोफाइल को चेंज नहीं कर सकते। गॉट इट द पॉइंट? So how to create a profile? That simply how to create a profile, I'm just click on a setup option. Inside the setup options, now I'm just search a profile. Click on profile. This all are the all my standard profiles and you cannot delete the standard profile. देखिए जो भी आपकी standard profiles हैं आपके पास delete का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। Now I'm just go to the system admin. So you can see कि यहाँ पर भी आपके पास क्या है, कोई डिलीट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। सो एडिट का आ रहा है, अगर आप एडिट पे भी क्लिक करेंगे so you can see you cannot edit because the standard profiles को permissions को आप एडिट नहीं कर सकते। so now you can see the permissions, so permissions को एडिट करने के राइट्स ही आपको नहीं मिल रहे हैं, आपके पास कोई राइट्स ही नहीं है एडिटिंग के लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड परमिशंस को एडिट कर सकें, पर्टिकुलर जो भी स्टैंडर्ड जनरल यूजर परमिशंस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। So अब ये these are the default objects provided by the Salesforce and custom objects, तो आप इनमें से किसी भी चीज को एडिट कर ही नहीं सकते। तो अगर आपको ये एडिट करनी हो तो क्या होगा, सो नाउ Salesforce कहता है कि आप मेरी प्रोफाइल में एडिट नहीं कर सकते, बट अगर आप इसकी कॉपी करके क्रिएट कर लेते हो देन आप जो मर्जी कर सकते हो। तो नाउ कि अगर मुझे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, पर्टिकुलर किसी टीएल के लिए एडमिन की प्रोफाइल क्रिएट करनी है, तो नाउ आई एम क्रिएट अ प्रोफाइल।
तो मुझे अगर प्रोफाइल क्रिएट करना है तो सिंपली सा है गाइस, आई एम जस्ट click on profile. Inside the profile you can option is coming a new profile, then select a profile जो भी आप profile बनाना चाहते हैं, like I'm create in system administrator, so I'm select a system admin and now I'm just give the here is like a TL hyphen custom custom hyphen profile profile. तो मैं एक TL custom profile create कर रहा हूँ and this is my TL से related है, या I'm just give the TL profiles में कर रहा हूँ, TL like a sales profile. तो मैं सेल्स डिपार्टमेंट के TL के लिए एक प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ और बाय डिफॉल्ट आई एम जस्ट सिलेक्ट एग्जिस्टिंग प्रोफाइल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि ये जो प्रोफाइल क्रिएट होगी, ये कौन सी प्रोफाइल क्रिएट होगी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की ही प्रोफाइल क्रिएट होगी. नाउ क्लिक ऑन सेव. अब गाइस क्या हुआ कि दिस इज अनदर एडमिन. तो अगर मैं इस प्रोफाइल को किसी भी यूजर के साथ अटैच करूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एडमिन ही बन जाएगा. नाउ आई एम क्रिएट अ वन मोर यूजर. सो हाउ टू क्रिएट अ यूजर इज सिंपली you can search in user, after create a profile and click on users, and now you can see the n number of user is available. Same as if you can create a new user, you can click on new and give the user ID and these all things. So now you can see कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है प्रोफाइल्स का, और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोफाइल, बट कहते हैं यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपको सेल्सफोर्स का लाइसेंस लेना पड़ेगा एंड सेल्सफोर्स प्रोवाइड अ 2 लाइसेंसेस. सेल्सफोर्स गिव यू द 2 लाइसेंसेस. तो इसलिए यहाँ पर सेल्सफोर्स लाइसेंस नहीं आ रहा है, इसलिए आप सेल्सफोर्स की प्रोफाइल एडिट नहीं कर पा रहे हैं. बट अगर आपको प्रोफाइल्स करनी है तो नाउ आई एम रिमूव द लाइसेंस टू अनदर यूजर. तो सेकंड जो मेरा लाइसेंस है आई एम यूजिंग विद गौतम राकेश. So now I'm just click on edit and after click on edit you can see कि यहाँ पर मैं Salesforce की प्रोफाइल का यूज कर रहा हूँ. So अगर मैं यहाँ पे Salesforce की प्रोफाइल का यूज कर रहा हूँ तो सिंपली गाइस आई एम जस्ट चेंज, मैंने यहाँ पर लाइसेंस चेंज कर दिया है. और अब अगर मेरे को कोई यूजर क्रिएट करना है, यानी कि मेरे पास एक लाइसेंस फ्री हो चुका है, नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन न्यू प्रो यूजर, give the user name and alias name, email ID, user ID you can set, and then you can see the options. Select a Salesforce license, and if you can click a Salesforce license, it show the all profiles. And guys यहीं पर ही देखिए आपकी एक प्रोफाइल आ रही है TL sales profile. Got it the point, everyone? Is it clear? Yes sir. हाँ जी. What about Sadar? Now the next point is coming, guys. I'm just click on a cancel, and now I'm just attach this profile with like a Gautam Rakesh. There's a one user is available. Now I'm just click on a edit, and first I provide a Salesforce license. Then I'm attached for this user is TL sales profile, and now save. तो गाइस मैंने एक यूजर क्रिएट करा लाइक का गौतम राकेश के नाम से, और इस समय मैंने वो प्रोफाइल अटैच कर दी यहाँ पे जो मेरी थी, यानी कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड TL सेल्स प्रोफाइल. इफ यू कैन सी आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, यू कैन सी which access is required. So यहाँ पे देखिए ये सारे एक्सेसेस आ रहे हैं, ये सारी की सारी एप्स क्या कर पा रहा है, ये यूजर एक्सेस कर पा रहा है. नाउ सेम एज आई एम जस्ट लॉगिन विद अनदर यूजर, मैं अपने अनदर यूजर से लॉगिन होता हूँ लाइक login.salesforce.com पर, और आई एम लॉगिन विद गौतम राकेश यूजर से मैं लॉगिन होता हूँ. तो दिस इज माय अनदर यूजर, आई एम लॉगिन टू द अदर ब्राउजर, एंड देन यू कैन सी कि एट दिस टाइम यहाँ पर भी वही सारी की सारी प्रोफाइल्स वगैरह विजिबल होंगे, बिकॉज क्योंकि ये भी मेरा क्या एक एडमिन है. बट आप चाहते हैं कि ये TL तो है, बट TL है तो व्हाई इट शो द अदर सर्विसेज, यानी कि अदर एप्स उसको विजिबल ना हो. मैं तो जो ऐप विजिबल कराना चाहता हूँ सिर्फ वही ऐप क्या हो इस पर्टिकुलर यूजर्स को विजिबल हो. सो नाउ आई एम जस्ट गो टू द एडमिन एंड नाउ क्लिक ऑन अ प्रोफाइल, और जो प्रोफाइल मैंने इस यूजर को एलोकेट करा रखे हैं, गाइस यू कैन सी द गौतम राकेश यूजर है TL सेल्स प्रोफाइल. सो आई एम गो टू द प्रोफाइल, then click on T. So T से related सारे profiles यहाँ पे visible होंगे, the TL sales profile, and now you can see the delete option is also available because it's my custom profile, and edit option is also available. Now I'm just click on edit,
and after click on edit I'm just give कि it's not visible to these all apps. मैं चाहता हूं कि यहाँ पर इसको ये सारी की सारी एप्स विजिबल ना हो. तो इट्स विजिबल ओनली रिलेटेड टू, हम लोगों ने एक ऐप बनाई थी स्टेट बैंक ऐप, SBI बैंक ऐप. तो मैं चाहता हूँ ये SBI बैंक ऐप विजिबल हो. उसके अलावा नाउ दीज 3-4 एप्स और विजिबल हो एंड नथिंग एंड देन क्लिक ऑन सेव. तो मैंने क्या करा कि TL सेल्स की प्रोफाइल्स को पर्टिकुलर सेल्स की प्रोफाइल के अंदर मैंने एक सेटिंग चेंज कर दिया. नाउ यू कैन सी गाइस आई एम अवेलेबल इन एडमिन पोर्टल. Its admin portal, the name is this admin is like in ICCP info. Yeah, it's ICCP info tag is the name of this profile. And now you can see if I'm just click on here and you can see the all app is visible to you. But now if I'm just go to the another user, then you can refresh and see the only these some apps is visible to this particular user. तो क्या देखिए जो राइट्स हमने दिए थे वही एप्स यहाँ पर विजिबल हो रही है. तो नाउ के फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज यू रिमेंबर कि अगर आपको कभी भी कोई भी काम एग्जीक्यूट करना है सेल्सफोर्स पे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नाउ क्रिएट यूजर प्रोफाइल. आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है एंड नाउ क्रिएट यूजर दैट अटैच प्रोफाइल टू यूजर. यानी कि आप जो भी प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि आप अपने यूजर का क्या क्रिएट कर रहे हैं, वर्क डिफाइन कर रहे हैं. यूजर की एक क्या सेट कर रहे हो, एक कहते ना वर्क प्रोफाइल, एक वर्क प्रोफाइल क्रिएट करके दे रहे हैं कि वो जो यूजर है वो क्या काम कर सकता है. गॉट इट एवरीवन? इज इट क्लियर? क्या काम कर सकता है और पर्टिकुलर किस चीज पर काम कर सकता है, तो उसके लिए वी हैव क्रिएट अ प्रोफाइल. तो गाइस व्हाई आई एम इंट्रोड्यूस, मैं इसलिए इसको फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ फर्स्ट क्लास में, बिकॉज गाइस कि मैं चाहता हूं कि जब हम आगे सेल्सफोर्स पढ़ते जाएं तो आप प्रोफाइल में इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि आपको परमिशन से रिलेटेड और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ये चैलेंजेस ना आए. यस हसन, टेल मी. सर ये जो अपना अटैच करना बताया था एक बार फिर से बता देंगे उस पे पोर्टल पे? इट्स सिंपली गाइस यू कैन जस्ट क्लिक टू एनी यूजर. आप किसी भी यूजर पे जाइए. नाउ आई एम जस्ट गो टू द एडमिन यूजर्स. आप XYZ किसी भी यूजर पे जाइए एडमिन को छोड़ के, क्योंकि एडमिन के पास. नाउ आई एम जस्ट गो टू लुक लाइक एक और यूजर है मेरा वंश, बट मेरे को क्या लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा. So if we required a license is simply मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, I'm just click on, या मैं राकेश यूजर पे जाता हूँ. Now click on edit and first I'm change a license. तो मैंने लाइसेंस चेंज करा. तो देखिए यहाँ पर अब मेरे का नहीं आ रहा. नाउ सेव. अब आपके पास एक लाइसेंस फ्री हो गया है. नाउ कि अब आपको किसी भी यूजर पे अटैच करना है तो आप कर सकते हो. लाइक मेरा एक यूजर है लाइक पूजा. नाउ I'm just click on edit. And right now you can see the current is a system administrator profile. Now I'm select a Salesforce license and give the TL sales. And अगर ये यूजर एक्टिव करना है so you can click on active. अनचेक का मतलब deactive यानी कि डिसेबल कंडीशन में. तो now click on save. तो अब मैंने यहाँ पे अपडेट करी फाइल. यू कैन सी कि गाइस अब ये TL सेल्स प्रोफाइल हो गई. सेकेंड कि वन मोर कि यू कैन अटैच वन प्रोफाइल विद मल्टीपल यूजर्स. आपको जरूरी नहीं है कि अभी यहाँ पर मेरे 4 यूजर्स हैं. तो दीज आर द 1 2 3 4 यूजर्स हैं. तो इन 4 यूजर्स के लिए अगर आपको प्रोफाइल बनानी है तो सिंपल सा है. नाउ यू कैन गो टू द यूजर टैब, देन क्लिक ऑन अ प्रोफाइल एंड नाउ न्यू प्रोफाइल एंड गिव द सिलेक्ट लाइक मैं स्टैंडर्ड यूजर की प्रोफाइल क्रिएट करना चाहता हूँ इनके लिए. तो नाउ इज TL normal user प्रोफाइल. सो गाइस मैंने यहाँ पे एक और प्रोफाइल क्रिएट कर दी स्टैंडर्ड यूजर, यानी कि अब मैं एडमिन से, स्टैंडर्ड का मतलब है लिमिटेड एक्सेस होंगे मेरे पास. अब इसके अंदर भी क्या है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन एडिट. अब मैं चाहता हूँ कि ये जो अदर यूजर्स हैं वो किस चीज पे काम कर सके. तो देखिए बाय डिफॉल्ट ऐप के एक्सेस सभी को मिलेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड यूजर की प्रोफाइल में ये एक्सेस थे. आई एम रिमूव and now uncheck this and now I'm just key only the SBI बैंक ऐप. SBI बैंक ऐप के ही राइट से इस यूजर्स को आए और सेल्स डिफॉल्ट है एंड क्लिक ऑन सेव.
तो गाइस मैंने एक यहाँ पे नॉर्मल यूजर की प्रोफाइल बनाई, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आ रहे हैं ऑब्जेक्ट। तो दीज आर द सम बेसिक ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट इज अवेलेबल, कि कौन से ऑब्जेक्ट विजिबल हो, कौन से ऑब्जेक्ट विजिबल ना हो, सो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग है। बट यहाँ पर क्या है, एक लिमिटेड एक्सेस यहाँ पर एलोकेट करे हुए हैं यूजर्स को। एंड नाउ क्लिक ऑन सेव। नाउ कि मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल स्टैंडर्ड यूजर की प्रोफाइल बनाई है। अब देखिए दोनों प्रोफाइल में क्या फर्क है, कि अभी इफ यू कैन सी कि आई एम जस्ट गो इन माय यूजर, मैं अपने यूजर अकाउंट पे जाता हूँ and now I'm just come to the my user and click on users and currently is a TL sales profile is available. Now I'm add it and remove the license and added the this profile to this Gautam Rakesh users and provide is it like a Salesforce and give the TL sales profile and now click on save. अब गाइस देखिए यहाँ पे क्या फर्क आएगा नाउ, कि यहाँ पर मैं क्या कर पा रहा हूँ, आई एम जस्ट गो टू दिस यूजर, मैं इस पर्टिकुलर यूजर पे गया, नाउ क्लिक ऑन सेटअप, सेटअप ऑप्शन पे गया, आफ्टर क्लिक ऑन सेटअप ऑप्शन। नाउ गाइस क्योंकि टीएलबी क्या है, मेरा एक एडमिन है, तो नाउ यहाँ पे देखिए यू कैन सी द यूजर ऑप्शन इज अवेलेबल, क्लिक ऑन यूजर्स एंड यूजर्स पे आने के बाद नाउ कि आई एम जस्ट गो टू द डोगरा पूजा एंड नाउ जो भी मुझे एडिटिंग करनी है मैं अपने अकॉर्डिंग प्रोफाइल के अंदर एडिटिंग कर सकता हूँ। गॉट इट एवरीवन? गाइस गॉट इट कि मेरे पास यहाँ पे सारे राइट्स मिल रहे हैं, क्योंकि दिस इज अ एडमिन प्रोफाइल। यहाँ पर क्यों है राइट्स मिल रहे हैं, क्योंकि ये मेरी एडमिन प्रोफाइल है। बट यहाँ पर उस एडमिन प्रोफाइल में मैंने क्या दे दिया है कि जो ऐप एक्सेस है वो लिमिटेड कर दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4, बट मैंने एक नॉर्मल यूजर भी क्रिएट करा है। सो नाउ आई एम जस्ट गो टू again admin panel, now click on edit and change this user profile right now कि मैं TL sales की जगह मैं कर देता हूँ TL normal user की। अब ये मेरा normal user है। now click on save and now refresh then go to the another user, another console and now again click on refresh। so my profile is update, तो कभी कभार थोड़ा सा टाइम ले जाता है guys। and now I'm just come to this particular user and then click on users, then again click on users। so now you can see the all user is available, the TL से यहाँ पे ये मेरा normal user हो गया है। now I'm just create, so guys देखिए यहाँ पे create करने का ऑप्शन आ रहा है, user create करने का ऑप्शन आ रहा है guys। नहीं आ रहा गाइस, बिकॉज क्योंकि मैंने इस समय एडमिन प्रोफाइल नहीं दी है इसको। नाउ जस्ट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर यूजर एंड नाउ देखिए यूजर की किसी प्रोफाइल को ये एडिट भी नहीं कर पा रहा है। गॉट इट द पॉइंट? व्हाई? बिकॉज आई एम गिव द नॉर्मल यूजर परमिशन। सो पहले मैंने एडमिन परमिशन दी थी, दैट्स व्हाई इट्स वर्क, बट राइट नाउ आई एम जस्ट गिव द नॉर्मल यूजर परमिशन, तभी ये यूजर क्या कर पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है। Clear the point how to create user and how to create profile and how to edit profile and how to attach profile and how to check the profile output. Is it clear guys? Now thank you guys and